Hi everyone, I hope you all are amazing and preparing well for your examination. Today, I'm Parul going to talk about something very important. Yes, which will really help in your examination. But before that, let me share something with you. Yesterday, I was reading a very interesting study, and according to that study, on an average, a person has approx 40,000 thoughts in a day. 40,000, yes. Now my question is from you people, क्या आप सारे जो 40,000 थॉट्स होते हैं सबको इक्वल वेटेज देते हैं कि हाँ यार इस पकड़ के इस थॉट को भी सोचना है मैंने अच्छे से, इसको भी इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनी पर्सन. So when we are so choosy when it comes to our thoughts, we should be very choosy what to study and what not. So in this particular video, I'm going to talk about what are the different topics we have to study when it comes to commerce and accounting examination and what is the weightage of each topic so that जब आप पढ़ने बैठे ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटिंग आपको पता हो कि हाँ इस टॉपिक में मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इस टॉपिक में मुझे ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. That is the sole purpose behind making this particular video. So now without a further ado, let's dive into the video and understand the things which I was talking about. So first, let me take a minute and tell you about the structure of the paper in just a minute so that when you watch the subsequent video, the whole video, it will be very easier for you to relate the video. So when it comes to commerce and accounting examination, you have two exams, paper 1 and paper 2. All right. Further, paper 1 is divided into two categories. The first one we have is section A. The another one we have is section B. Same for paper 2. We have section A and section B. All right. I hope this thing is clear. Now, in section A, you have question of 200 marks. Same section B, section A under paper 2 and section B under paper 2. However, some questions are optional and some questions are compulsory. So I hope आपको basic structure पता चल गया है, pattern पता चल गया है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, कैसे कैसे होता है. अब बात करते हैं हम पेपर 1 की. पेपर 1 सेक्शन ए पे फोकस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा. अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं. टोटल इन सेक्शन ए पार्ट 1 under part 1 you have 4 important subjects. As you can see in front of your screen, you have financial accounting, then you have cost accounting, you have taxation and you have auditing. Of course आपको clearly पता चल रहा है financial accounting and cost accounting की weightage सबसे ज़्यादा होती है, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है एक बार पैटर्न देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 1. अब क्वेश्चन 1 में क्या होता है, आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं. All right, you have 5 questions in total 1, 2, 3, 4 and 5. Out of those 5 questions, 4 questions are compulsory. 4 questions are compulsory. All right, and these 4 questions are from these 4 important subjects. One question will be from financial accounting, another will be from cost accounting, another will be from taxation and then auditing. Now you must be thinking, ma'am, what about the last question? Let me answer the same. Last question examiner क्या करता है, या तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको दे देते हैं या वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से दे देते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर एज वेल. हाउएवर मोर और लेस जो पैटर्न रहता है दैट इज द सेम पैटर्न यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, अभी जो भी होगा 2024. आई होप दिस थिंग इज क्लियर सो फार. अब बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है. व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर देते हैं, थ्योरी वाला पार्ट जो कि इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए वो नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स. इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा. अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की. जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग से आपके पास थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. इट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल से आपको प्रैक्टिस नहीं करने जा रहे. अकॉर्डिंग टू द previous year analysis which I have done for this particular video, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी के आते हैं, न्यूमेरिकल्स के पूछे जाते हैं. हाउएवर द रेशियो इज लेस. ऑलराइट, मैंने नोट्स भी स्पेशली बनाए थे. लेट मी सी इफ आई एम फॉरगेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. Alright, yeah, I've covered it. Now let us talk about the next part, that is taxation. अब taxation से मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 क्वेश्चंस आते हैं. 10 कंपल्सरी, जो मैंने भी आपको बताया, जो क्वेश्चन 1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस कंपल्सरी आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो 15 मार्क का आता है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्योरी. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो 20 मार्क का आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाता है. This is what I'm telling you when it comes to your taxation portion under section A part 1. Alright, 3 questions are generally being asked when it comes to taxation. तो 45 marks आप देख रहे हो इक्वल है. ठीक है. अब now let us talk about auditing. Generally we see only 2 questions. I am saying generally. However, there was an exception in 2018. There were 3 questions when it comes to auditing. Alright. 3 questions. So 2 questions जब होते हैं तो 1 is of 10 marker and another 1 is of 15 marker. तो उस समय एक्सेप्शन थी, आपके पास 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. हाउएवर मेजरली एज आई सेड मल्टीपल टाइम्स इन दिस वीडियो ओनली 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. ऑलराइट, आई होप इतना आपको क्लियर है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन बी अंडर पार्ट ए ओनली. एज यू कैन सी पार्ट ए. यहाँ पे आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं. आपके पास पहले होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन यू हैव फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. एज यू कैन सी काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे. इक्वल वेटेज आप दोनों को नहीं दे सकते हैं. मेजर जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑन एन एवरेज आपके पास 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 कम फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओनली, विच इज अ बिग थिंग. तो यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कवर करेंगे, जितने भी थ्योरीज आप कवर करेंगे, यू विल हैव टू कीप इन माइंड आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. क्योंकि अगर ये एग्जाम, ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन आपका वीक है, वो आपका एग्जाम आपको कॉस्ट कर सकता है. तो हैव टू कीप इन माइंड टॉपिक्स को उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेम व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, जनरली हमें यहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आई हैव रिटन दैट फॉर यू एज वेल. तो यहाँ पर हमारे पास 10, 10, 15 मार्क के हमें क्वेश्चंस देते हैं. आउट ऑफ दीज 2 आर कंपल्सरी एंड इनमें से जो एक होता है वो ऑप्शनल होता है. However, according to pattern, and this is something good news for you people, questions का जो level होता है वो easy होता है. Yes, the questions are of easy level when it comes to financial market and institution, which is a good thing. I forgot to tell you one more thing. यहाँ पर टोटल देख लेते हैं सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेक्शन बी में टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से होता है and 2 questions are from financial market and institution. This is something again you need to remember. तो यहाँ पर जो मेजर प्रपोर्शन है वो FM को है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. अगेन दोनों चीजें साथ में लेके चलना. वेटेज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको भी उतना कंसिडरेट करने की जरूरत है. Alright, because it is your examination, proper analysis करना it's important, and I'm sure after this video आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को मुझे कितना पढ़ना है. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, that is part 2, and let us talk about section A. This particular section is majorly dedicated towards management, जो मैनेजमेंट का आपका पार्ट है इन योर कॉमर्स एंड अकाउंटिंग एग्जामिनेशन.
एज यू कैन सी आपके पास दो सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए हैं. द फर्स्ट वन वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड अनदर वन वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड द बोथ आर ऑफ 100 मार्क्स ईच. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग मैम दोनों पढ़ने? यस, दोनों पढ़ने हैं विद इक्वल वेटेज. जनरली जो पैटर्न हो ऑब्जर्व किया है वो हमने ये ऑब्जर्व किया है दैट ओटी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. अगेन दिस इज जस्ट एन एनालिसिस. हाउएवर 100 मार्क्स का दोनों कंसिडर करके जा सकते हैं. तो यू हैव टू कीप इन माइंड when you are preparing for your optional subject commerce and accounting कि आप दोनों अपना बेस्ट तैयार करके चाहिए. क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं. वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, हाउएवर इजी हो डिफिकल्ट हो, अगर अच्छा कंटेंट नहीं लिख रहे हैं जो एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार दैट पर्सन हैज रिटन समथिंग डिफरेंटली, तो कोई रेलेवेंस नहीं है. आपको पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इक्वल वेटेज देनी है दोनों में. ऑलराइट, दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन इज, pardon me, it should be section B. Let us talk about, and we have again two subjects. We have human resource management, industrial relations. तो जैसे मैंने आपको कहा मेजरली मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, समवेयर अराउंड 120 to 160 मार्क्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस 40 to 80. कभी कभी एक क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है. अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया है सपोज, तो यहाँ पर सिर्फ 40 मार्क्स का पूछ लेंगे. अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कम लिया है, 120 का ही लिया है, तो यहाँ पर हम 80 का ले लेंगे. तो जनरली जो प्रपोर्शन रहता है वो यही रहता है. तो आपको दोनों ही अच्छे से पढ़ने हैं. अगेन मेजर एम्फसाइज इफ यू हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट, माय एडवाइस एज अ मेंटोर वुड बी कि आप सारे अच्छे से पढ़ के जाइए. हाउएवर आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल वेटेज के साथ साथ देखना है कि मैं किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ. अगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो आप HRM को उठा सकते हो. यू कैन लीव दिस टॉपिक, हाउएवर इट विल बी नॉट बी माय रिकमेंडेशन टू यू टू लीव एनी टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन. हो सकता है IR से कुछ टॉपिक आपको इजी पूछ लिया जाए, वेयरएज HRM से आपको डिफिकल्ट टॉपिक पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए. So I hope this small video really helped you out understanding the equal weightage when it comes to commerce and accounting. इसके अलावा अगेन द टिप इज प्रीवियस क्वेश्चंस को हमेशा साथ में उठा के चलिए. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न क्वेश्चंस. एंड जनरली कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं. इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक फॉर ऑल ऑफ अस देन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन अ स्मॉल वीडियो. सो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और क्या हम हेल्प कर सकते हैं in order to boost your preparation, and we will be happy to help you. That's all from my side. Thank you so much.